हेलो, इस वीडियो में आप क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज सेक्शन लेसन 1 के चैप्टर को समरीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नेम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी ने लिखी है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more spiritual leader than politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste, idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevate the moral being. तो चलिए इसको अब हिंदी में समझते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। 1915 से 1948 तक वे भारतीय राजनीति पर पूरी तरह हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और उनके द्वारा यंग इंडिया के लिए लिखे गए कई लेख और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण उन्हें न केवल एक मौलिक विचारक के रूप में प्रकट करते हैं, बल्कि शुद्ध, मुहावरेदार अंग्रेजी के महान स्वामी के रूप में भी। निम्नलिखित उद्धरण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक टिकी हुई है। पश्चिमी सभ्यता, जिसमें वैवाहिक संबंधों को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने वाली भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती। अगर आपको इस लेसन का क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को समरीज करते हैं। Mahatma Gandhi in his essay Indian Civilization and Culture talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. Indian civilization has the unique distinction of surviving through the ages. The ancient civilization of Greece, Rome, Egypt and China are gone. But the basis of Indian civilization is still sound and secure. The world is fast changing but India remains culturally changed. The strength of Indian civilization has been tested on the basis of experience. Sages and saints, rishis and fakirs have commanded a greater respect in India than king with all their might. Indian civilization is based on the principle of good conduct. It points out the path of duty and teaches us to uphold moral principles. Its ultimate end is the attainment of self-knowledge. It aims at the elevation of the moral being. As contrasted with it, the Western civilization is based on the worship of the material. Indian civilization teaches us to control and regulate our desires. It preaches self-control and shows the path of happiness. Indian civilization is meant for elevating the moral being. That of the Western civilization is to spread out the message of immorality. The latter is godless, the former is based on a belief in God. It is superior to Western civilization. It behaves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as child cling to the mother's breast.
तो अब जानते हैं इसको हिंदी में। महात्मा गांधी अपने निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय के साथ सफलतापूर्वक टिकी हुई है। भारतीय सभ्यता को युगों तक जीवित रहने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यूनान, रोम, मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यता लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता का आधार अभी भी सुदृढ़ और सुरक्षित है। दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन भारत सांस्कृतिक रूप से बदला हुआ है। भारतीय सभ्यता की शक्ति को अनुभव के आधार पर परखा गया है। साधु संतों, ऋषिमुनियों और फकीरों को भारत में राजा से भी अधिक सम्मान मिला है। भारतीय सभ्यता अच्छे आचरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह कर्तव्य का मार्ग बताता है और हमें नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना सिखाता है। इसका अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इसका उद्देश्य नैतिक अस्तित्व का उत्थान करना है। इसके विपरीत, पश्चिमी सभ्यता सामग्री की पूजा पर आधारित है। भारतीय सभ्यता हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित और नियंत्रित करना सिखाती है। यह आत्मनियंत्रण का उपदेश देता है और खुशी का मार्ग दिखाता है। भारतीय सभ्यता नैतिक उत्थान के लिए है। पश्चिमी सभ्यता का उद्देश्य अनैतिकता का संदेश फैलाना है। उत्तरार्ध ईश्वर विहीन है, पहला ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। यह पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ है। यह प्रत्येक भारत प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से वैसे ही चिपके रहने का व्यवहार करता है, जैसे बच्चा माँ की छाती से चिपका रहता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।